अब हम आज के पैनल 8 पे चल रहे हैं। कल हमारे 3 पैनल हुए थे, आज का तीसरा पैनल है जिसका थीम है एडवोकेटिंग द चेंज। नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ दिस चेंज, द क्वेश्चन अराइजेस, चेंज फॉर व्हाट? चेंज फॉर डिसेबिलिटी इंक्लूसिव इंडिया, दिव्यांगजनों का जहां समावेशीकरण हो सके। अब दो सवाल उठते हैं कि ये समावेशीकरण क्या है, ये इंक्लूजन क्या है और इसे कैसे अचीव किया जाए। तो इसके लिए सिर्फ पहला कदम ये है कि हम अपने अपने एटीट्यूड में, अपने अप्रोच में चेंज लेके आएँ। जो दे वर्सेस अस वाला सिनारियो है कि हम सोचते हैं कि दिव्यांगजनों के लिए कुछ करना है या इंक्लूजन करना है, इसकी बजाय हम अस पर्सपेक्टिव पे चले जाए। इट्स नॉट दे वर्सेस अस कि कोई दूसरा पार्टी है और एक पार्टी हम हैं। इट्स लाइक वी ऑल आर जस्ट वन सिंगल यूनिट। और इसको करने के लिए 5 स्टेप्स हैं जो बहुत प्रैक्टिकली हम अचीव कर सकते हैं। पहला है वेलफेयर या हित, जहाँ से शुरुआत होती है। दूसरा है एक्सेस या पहुँच, जिससे हर कोई उसमें अपना हिस्सेदारी अचीव कर सके। तीसरा है कंसेंटाइजेशन या जागरूकता, जिसमें ये एहसास आए कि हाँ, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल एंड वी आर इक्वली हैविंग एक्सेस टू एवरीथिंग। फोर्थ स्टेप इज़ पार्टिसिपेशन और भागीदारी। एंड द फिफ्थ इज़ कंट्रोल, नियंत्रण। नियंत्रण का मतलब ये नहीं कि द अदर पार्टी हैज स्टार्टेड रूलिंग द प्रीवियस वन। कंट्रोल विदाउट सबऑर्डिनेशन और डोमिनेंस। सो ये अचीव करना इस आज के एनसीडी का भी हमारा विजन है। और हम जो काम कर रहे हैं, हम सभी सार्थक और संस्थाएं जो और भी चेंज मेकर्स हैं, हमारा सबका ये कॉमन विजन है। एंड वी आर वेरी हैप्पी टू शेयर this, that we are observing this shift happening with the support of all our stakeholders. Now I'd start requesting our moderator of the session and panelists to please join us. I'll start with inviting Sri Suresh Kumar Gupta ji, our National Advisory Board member. He is moderator of the session. Suresh Gupta sir joined Telecom Services 1983 batch. He worked in Department of Telecom for more than 34 years and retired as Deputy Director General in 2019. Welcome Suresh sir. Suresh sir is back to back comparing this second session. Thank you sir for this thing. Second, I would like to invite Dr. Jitendra Agarwal. He is founder and CEO Sarthak and Secretary General NAAI, National Olympic Association of India. He is working since last 14 years for empowering PWDs. I would next invite Love Verma sir. Love Verma sir is former Principal Secretary to the Government of India. Mr. Verma has an extensive administrative experience of more than 37 years, spanning a wide range of assignments. I would next invite Mr. Manoj Kumar ji. He is Member Projects National Highways Authority of India and Chairman National Highway Logistics Management Limited. I would next invite Shri Rajkumar Makkar ji. Rajkumar Makkar ji is State Commissioner for Persons with Disabilities, Haryana. He has also served as Deputy Advocate General for Government of Haryana. I would also like to share that sir has been recently awarded as Best State Commissioner. Glad to have you, sir. Next, I'd like to invite Shri Rajiv Sharma ji, Joint Secretary in Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice and Empowerment. Last, I would like to invite Shri Raj Kapoor ji, our National Advisory Board member. Raj Kapoor sir has more than 40 years of experience in different C-suite profiles. I now request all our esteemed guest of honor, panelists, to please proceed with the event with lamp lighting.
शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते. Thank you so much for starting the event with lamp lighting. Suresh sir, now I would request you to please take the session ahead. Thank you, Nishtha, and I extend my warm welcome to all the guests on the dais. Dr. Jitendra Agarwal, Lav Verma ji, Mr. Manoj Kumar, Rajkumar Makkad ji, Rajiv Sharma, and Raj Kapoor ji. I think today's session is about advocating the change. How do you envision disability inclusive India? That's the topic of today's panel. And in this mission of inclusive India, disability inclusive India, what can be the role of civil society organizations and NGOs to catalyze this change? So that's the main topic. To share his thought, to share your thoughts, I'll invite you one by one, and I'll start with Dr. Jitendra Agarwal. As you all know, Dr. Jitendra Agarwal is the CEO of Sarthak Educational Trust, and he is the main force behind all the efforts of Sarthak. So without saying much about him, because all of you already know him, I'll request him to share his thoughts. ठीक है. नमस्कार दोस्तों, हम लोग जो कल से आज सेकंड डे है हमारा 9th नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और कल जैसे आप लोगों ने देखा कि हमने पहले गवर्नमेंट और CSR के बारे में डिस्कशन किया, फिर कुछ जो हमारे कॉरपोरेट्स के साथी थे जो दिव्यांग बच्चों को हायर करते थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से जो उनके पास डिमांड अब इतना ज़्यादा है कि उनको बच्चे नहीं मिल रहे. तो जैसे उन लोगों का था कि अब आप दिव्यांग लोगों को तैयारी करनी है, ताकि जो कॉरपोरेट अब तैयार हो गया उसमें आप लोगों को नौकरियां पानी है. उसके बाद फिर हम सेकंड हाफ में हमने देखा कि जो दिव्यांग लोग थे बड़े एंटरप्रेन्योर बन गए हैं, उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया है और बड़े स्केल पे जो वो बिज़नेस हो गया है. तो इससे भी आपको इंस्पिरेशन लेना है कि जो नौकरी भी एक अच्छी बात है, बट अपना बिजनेस करके भी आप एक बड़ा काम कर सकते हैं. और कितने सारे दिव्यांग लोग थे उस ग्रुप में जो ना अलग अलग लेवल पे और अलग अलग उस पे काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं और बड़े स्केल पे बिजनेस चला रहे हैं. उसके बाद फिर हमने टेक्नोलॉजी के बारे में कल डिस्कशन किया कि टेक्नोलॉजी कैसे गेम चेंजर हो सकता है. जैसे अभी एक समीर ने बताया कि जिस तरह से कि अभी है ना, एक हम लोग जो सोचेंगे वो अपने आप लिखा जाएगा कंप्यूटर पे. तो इस तरह की भी टेक्नोलॉजी अब आने वाली है, जिससे कि अब हमें हमारा जो ब्रेन है वो मैप कर लिया जाएगा और हम जो बोलेंगे. तो इस तरह से जो इनोवेशन हो रहा है, आज सुबह हमने देखा कि जो ओलंपिक्स के हमारे दिव्यांगजन अगले साल फ्रांस जा रहे हैं, वो उनकी तैयारी और उनके जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने किस तरह से उनके साथ मिलजुल के कर रहे हैं. तो जो स्किल में जो एक्सीलेंस की बात है वो भी आप लोगों को सोचनी है. और फिर हमने जो आइडिया के साथी लोग थे पूरे देश भर से जो कि अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं, और एक जो हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया आइडिया का, इंडिया डिसेबिलिटी एम्पावरमेंट अलायंस, ताकि हम हर दिव्यांगजन तक गांव तक पहुंच सके. और उसके बाद हमारा आज सेकंड हाफ में फिर हम अर्ली इंटरवेंशन में जो छोटे बच्चों की डिसेबिलिटी के बारे में, और शाम को फिर हम लोग मीडिया के लोगों से मुखातिब होंगे. तो ये पूरा एक जो 2 दिन का जो था, आई थिंक ईश्वर कृपा से अच्छा रहा, और हम उसी सीरीज़ में फिर हम आगे बढ़ रहे हैं. आज हमारे साथ माननीय मंत्री जी नहीं आ पाए क्योंकि कल लोकसभा का सेशन पूरा हो गया था और वो चले गए, बट हमारे साथ डिपार्टमेंट से जॉइंट सेक्रेटरी साहब आए हैं और कल सेक्रेटरी साहब आए थे. तो मेरे को लगता है कि हम राजीव शर्मा जी के लिए एक ज़ोर से ताली बजा सकते हैं. जैसे हम लोगों ने कल डिस्कशन किया कि अब सार्थक के प्रयासों से जो हम लोग 50,000 से ज़्यादा दिव्यांग लोगों तक को रोज़गार दे पाए हैं, करीब 2 मिलियन लोगों तक आउटरीच कर पाए हैं. बड़े ये छोटे प्रयास हैं, क्योंकि अभी एक इन कड़ियों में जो हमारे आइडिया के साथी हैं वो बड़ा, उनसे हम लोग उम्मीद रख रहे हैं, उनकी हम जो तैयारी कर रहे हैं कि एक सार्थक नहीं, ऐसे 1000 सार्थक उन आइडिया के पार्टनर से बन जाए, ताकि हम उस अफेक्ट को 1000 गुना बड़ा कर दें. और उसी सीरीज़ में हम लोग एक
जो ग्लोबल रिसोर्स सेंटर गुरुग्राम में बना रहे हैं, उसका मकसद ये है कि उनको वहाँ लाके और ट्रेन किया जाए ताकि वो भी अपनी लोकल ज्योग्राफी में गांव में ट्रेनिंग दे सकें। तो मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करूंगा कि इस तरह के और संस्थाएं, जैसे सुरेश जी ने बताया कि अभी हम 500 से 2500 तक ऑर्गेनाइजेशंस को टारगेट कर रहे हैं, तो आपके माध्यम से जो भी ऐसे संस्थाएं हो जो स्ट्रगल कर रही हैं, जो अच्छा काम करना चाहती हैं, वो इस प्लेटफॉर्म से जुड़े। और उसी सीरीज़ में एक अभी उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए एक प्लेटफॉर्म सोशल स्टॉक एक्सचेंज, जैसे आपने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुना होगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, उसी तरह से सेबी एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च कर रहा है ताकि फाइनेंशियली भी उनको सपोर्ट किया जाए। तो एक मिलजुल के एक ऐसा प्रयास है जिसमें हम लोग हर दिव्यांगजन तक पहुंच सकेंगे। और आई थिंक हम लोग काफ़ी आधा घंटा डिले चल रहे हैं, तो मैं बस अंत में यही बोलूँगा कि जो भी दिव्यांग लोग हैं, पेरेंट्स हैं, वो अब उनको यही सोचना है कि नए स्किल सीखना है, नया काम सीखना है, क्योंकि आपको नौकरी देने के लिए लोग लाइन में हैं और आप किसी भी लेवल में कोई भी स्किल गेन करें, बट बस उस स्किल को गेन करें और जीवन में आगे बढ़ें ताकि आपका जीवन भी सार्थक हो और सभी के प्रयासों से जो एक सार्थक का प्रयास था वो भी सार्थक हो जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जर्नी 2008 में शुरू हुआ, तब से मैं डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल के साथ जुड़ा हुआ हूँ। आज हम सारा भारत में 24 सेंटर चला रहे हैं, हज़ारों लोग इधर ट्रेनिंग लेके फ़ायदा पा रहे हैं और नए इनिशिएटिव, बहुत बड़े कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट जिसमें रिक्वायर्ड है। Sarthak's National Conference on Disability has always been a looked forward to occasion. Million people suffering from some kind of impairment, either visual or hearing or speech or mental or mobility. We just cannot rest on our laurels what Sarthak has done, and we have to continue to disseminate the message to more and more people. Last mile operations for Amazon India. We have been having partnership with Sarthak over the last 5 years to onboard and hire PWDs and enable work for them at Amazon. I'm so thankful to Sarthak for bringing so many things in the interest of PWDs, and that's something that Amazon strongly believes in giving equal opportunity to everybody in the society. Our vision truly is that every individual gets appropriate skill and employability. I wish Sarthak great success. Sarthak's contribution to enhancing employment opportunities for people with disabilities is indeed unparalleled. Active change occurs only when all constituents come together. I wish the Sarthak team all the very best for the event. Our association with Sarthak dates back to 2010. Then, Sarthak has only been breaking barriers. Our association with Sarthak goes a very long way. We have been recruiting people from Sarthak. There are agents who are working here for more than a year and a half, and each one gives a different type of performance. Organization which helps persons with disability. The Mumbai has partnered with Sarthak for organizing Abilympics here in Mumbai. And honored to be working with Sarthak, key part of these developments, especially supporting Sarthak in building up your international networks. India is at a nexus of disability innovation, and we are looking forward to being part of this journey. We wish you all a fantastic conference and congratulations on all of your achievements. Our mission is to make a digital world accessible to all. I'd like to welcome you to this very important conference run by Sarthak and by NAAI, focusing on digital inclusion. The agenda looks really exciting, and I'm sure you will have a great couple of days. Sarthak for liaising with more than 250 NGOs across India.
My privilege that I'm associated with Sarthak Trust and National Abilympics Association of India for past many years. The association is very special with there being a common cause for empowering and enabling differently abled with professional skills of high order. I inaugurate the vision for the India National Conference Disability. My greetings and best wishes to all the members of Sarthak Education Trust and their partners, and success in their mission of empowering disabled with quality education with state-of-the-art vocational skills. In the last 13 years, with geographic presence over 15 states, 24 locations in India, is working to empower people with disabilities far and wide so they can live their life with dignity. It is also coming up with the Sarthak Global Resource Center for persons with disability in Sector 45 Gurugram, a roof solution for all disability related concerns. Sarthak have expanded globally with its first office in London, UK. It's a great pleasure and pride for me that you are giving them professional guidance, intellectual guidance, educational guidance, appropriate vision by which they get a sustainable life in their future. Really, I am really impressed by your work. I am giving my all support to all of you and my best wishes to all of you. सार्थक द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में जो सराहनीय काम किया जाता है, सार्थक को बधाई देता हूं, सार्थक की पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं. I send my warm wishes and my greetings to Sarthak and do congratulate them for the laudable work they do in the service of those who are differently or specially abled, whom we gracefully call Divyangs, divinely able. Thank you for playing this video. Our next speaker is Shri Lav Verma. Lav Verma ji is a retired officer of the Indian Administrative Service of 78 batch, Uttar Pradesh cadre, with extensive administrative experience of more than 37 years, spanning a wide range of assignments, including 3 years as Secretary to Government of India. He has served at senior positions in the Government of Uttar Pradesh in the State Department of Health, Finance, Industry, Public Works and others, and has done field assignments as District Magistrate and Divisional Commissioner in UP. He also served as Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh. So over you to sir. Thank you गुप्ता जी. मैं कल बोल चुका हूँ काफ़ी विस्तार में, तो आज मैं छोटी छोटी 4-5 चीज़ें आपके सामने रखना चाहूँगा. एक तो इंक्लूसिव चेंज की जो बात हुई है, तो मुझे याद आ गया जो गांधी जी ने कहा है, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड. आप खुद ही वो परिवर्तन बनिए जो आप देखना चाहते हैं. तो हम लोग को अपने आप से शुरू करना है. और एक स्कॉट हैमिल्टन करके एक ओलंपियन हुए हैं, उन्होंने कहा है द ओनली डिसेबिलिटी इज़ अ बैड इन लाइफ इज़ अ बैड एटीट्यूड. तो हमें जैसे कि पहले सेशन में भी कहा गया था कि हमें अपने माइंडसेट चेंज करने हैं, वो बहुत ज़रूरी है. मैं राजीव शर्मा जी की उपस्थिति का लाभ लेना चाहूँगा और उनको बताना चाहूँगा कि हम लोग ने जो एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन शुरू की थी अक्रॉस 3 वर्टिकल्स, वो इतनी सफल इसलिए नहीं हुई क्योंकि उसका मिशन मोड में और रेगुलर मॉनिटरिंग उसकी नहीं हो रही है. तो मैंने पहले भी ये सुझाव दिया है कि एक कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज बननी चाहिए हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी, और रेगुलर मॉनिटरिंग इसकी अगर उस लेवल पे होगी तभी ये एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन सफल होगा. क्योंकि ये इसमें कई डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं, चाहे वो सिविल एविएशन हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट हो. तो क्योंकि ये अक्रॉस मिनिस्ट्रीज़ है, इसलिए ये ज़रूरी है कि कैबिनेट सेक्रेटरी के लेवल पे इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग, क्योंकि टाइम बाउंड इसमें हम लोग ने टारगेट्स दिए थे और वो टारगेट्स मुझे लगता है मीट नहीं हो रहे हैं. टेक्नोलॉजी का बहुत ही बड़ा रोल हम देख रहे हैं रोज़ की ज़िंदगी में, और यहाँ तक कि अब तो पोएम्स और एसेज वगैरह भी लिखने लगे हैं कंप्यूटर्स. चैट जीपीटी आपने सुना होगा, उसके माध्यम से. तो मैं चाहूँगा कि दिव्यांग लोग देखें कि टेक्नोलॉजी कितनी रफ्तार से चेंज कर रही है और कैसे उनकी मदद कर सकती है.
मैं आपको बताना चाहूँगा कि सार्थक अब ने अपने फुटप्रिंट्स जो हैं ग्लोबल कर ली हैं और एक यूके चैप्टर भी हम लोग ने शुरू किया है और कोशिश कर रहे हैं कि हम और भी कंट्रीज़ में एक्सपैंड करें। तो इसमें आप लोगों की मदद और शुभकामनाओं की ज़रूरत है। लास्ट में मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा, एक उदाहरण देना चाहूँगा किस तरह हमें ये अपनी बात बढ़ानी है, ये नोबल कॉज जो है इसको किस तरह आगे बढ़ाना है। एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि एक भिखारी था, वो राजा के पास गया, वो चेस बोर्ड ले गया, कहा कि मुझे बहुत भूख लगती है, आप ऐसा कीजिए कि पहले स्क्वायर पे आप एक दाना रखिए, फिर दूसरे पे 2 दाने रखिए, इस तरह से आप मुझे अन्न दीजिए तो मैं भूखा नहीं रहूँगा। तो राजा ने सोचा ये तो बहुत आसान चीज़ है, पर उन्होंने देखा कि जब तक वो 40th स्क्वायर तक पहुँचे तो उनकी पूरी जितने भी अन्न का भंडार था वो खाली हो गया, क्योंकि आप सोचिए कि अगर डबल किया जाता है हर एक स्क्वायर पे तो कितनी जल्दी वो बढ़ता जाता है। इसी तरह से हमें अपनी बात बढ़ानी है और सार्थक के साथ आगे चल के इसको कामयाब करना है। थैंक यू। थैंक यू सर। आपने जो एग्जांपल दिया कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, अगर ऐसे हम बढ़ेंगे तो बहुत जल्दी हम अपने गंतव्य स्थल पर पहुंच पाएंगे, सभी लोगों का एम्पावरमेंट और इंक्लूसिव इंडिया की तरफ बढ़ पाएंगे। और एक आपने जो सुझाव दिया कि एक कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज होनी चाहिए विच इज़ टू बी हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी, बिकॉज मैनी डिपार्टमेंट्स आर इन्वॉल्व्ड टू एम्पावर दिस सेक्टर। Thank you sir, thank you very much. I think now we have Abilympic video. Please play the video. I've been associated with Sarthak for the last 6 or 7 years in capacity as a member of the advisory board, and then when we took over NAI, I was asked to be the president of that. But the work is really done by the secretariat and the team. Dr. Agarwal is, I think, the bedrock of our institution. एबिलम्पिक्स जो है ये सब 2 शब्दों से मिलकर बना है, एबिलिटी और ओलंपिक्स। तो ये एबिलिटी ऑफ ओलंपिक्स है और इसमें जो दिव्यांगजनों का जो स्किल की प्रतिभा है उस पे हम लोग काम करते हैं। International Olympics happen every 4 years. Indian team has participated right from 2000, and that is when this association was formed, National Olympic Association of India. National Olympics Association of India. This was set up, as some of you may know, in 2001 with the blessings of the Government of India. Since then it has done very good work, and more recently it has been integrated with Sarthak, another NGO which is doing significant work last 10 years on the skilling and employment of persons with disability. I would like to appeal to all Divyangjan who have some kind of vocational skill, hobby, interest, not to be isolated but to develop those skills and come forward and participate. We are here celebrating the National Olympics program today, and this participation has come through the multiple regional competitions in 4 zones, and now we are doing this here at national level, and we all feel the level of skills that we are all seeing here, the level of organization that we are seeing here is wonderful. National Olympics Association of India is reaching to the far corners, each nook and cranny of the country in order to find the talent so that they come up to the international level and win India laurels abroad as well. 10 different traits that had been chosen are perfect because we could really find out the abilities of the people with different abilities across over here, and I think the talent is superb. The Hans Foundation has specially partnered with NAI
The reason being that it's providing lifetime opportunity for the candidates, especially people with disabilities, for showcasing their talent, giving them a chance to come out and show them what they can also do. And not only it will give them courage, dignity and pride for what they're doing for themselves and family, but they'll also get an opportunity to represent the whole country in an international scale. These kind of events should be encouraged in even school levels, and we should go to rural level, and I request Sarthak also to take them to the rural level rather than being in the urban level. Somewhere the talent that I see in these people, I think I have not witnessed in normal people. I'm definitely sure that the more this work gets focused, people will definitely come and join hands. डिसेबल होने के बावजूद भी हमारे स्किल्स को परखा जा रहा है, लोग जान रहे हैं। सबसे बड़ी बात है सार्थक के माध्यम से हमारे स्किल्स को ऊपर तक पहुंचाया जा रहा है, लोगों को जानकारी दी जा रही है। मुझे अच्छा लग रहा है बहुत, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं ये जो सर्टिफिकेट है और जो ये मेडल है मैं जीत पाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि ये इवेंट बार बार हो और जो जितने भी दिव्यांग लोग हैं, जो डिसेबल पर्सन है, मतलब उन लोगों को मोटिवेशन मिले। Now I am painting in this hall and feeling very happy. My painting theme is Save the Girl Child. नाई का जो मेन विजन है वो स्किलिंग इन एक्सीलेंस है, कि स्किल को हम लोग एक्सीलेंस तक लेके जाएं, और मिशन जो है इसका कि घर घर में हर दिव्यांग बच्चा प्रशिक्षित हो और वो रोजगार के माध्यम से जुड़ जाए। I've seen a lot of enthusiasm. The kind of energy they exude, the kind of enthusiasm that they show is amazing. Overall, finding the talent, giving them the right position, and now skilling them to compete for the next Olympics, which is in China in 2020. I think this is a great effort. And that will enhance and increase the motivation level of every disabled, that yes, they can be skillful, they can be employed, and they can do wonders in this world as anybody else can do. बुलंदियों को छूने की बारी हमारी, कुछ कर दिखाने की हमने ठानी, बनाएंगे भारत की एक नई कहानी, क्योंकि अब स्किल्स की बारी। Thank you. I think that was an excellent video. The skills of various participants who are, I think, going to participate in the next Olympic was shown here. May I now request Shri Manoj Kumar. Shri Manoj Kumar is member projects National Highway Authority of India and chairman of National Logistics Management Limited India. He has more than 27 years of experience in the field of maintenance, management and development of national highways and expressways in our country. I think जो भी expressways और highways की development आप पिछले 7-8 साल से देख रहे हैं, तो उसका बहुत श्रेय मनोज कुमार जी को जाता है. He is instrumental in planning and execution of and monitoring of all those projects, and we really enjoy driving over those highways. We have already achieved 100 kilometers speed limits, and I think the aim is to go even higher, maybe 120, 140. So over to you, Manoj Kumar. Esteemed panelists on dais, distinguished invitees and dear friends, सबसे पहले मैं सार्थक का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज ये मौका है जिसमें मिला है, जिसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में क्या हो रहा है और इसमें जो आपका एजेंडा है जो कि एडवोकेसी फॉर PWDs और दिव्यांग्स, उसको हम कैसे लेके आगे बढ़ सकते हैं. मेरे से पहले जब डॉक्टर लव वर्मा जी ने बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कैंपेन है एक्सेसिबल इंडिया, ये कुछ सालों से चल रहा है, इसमें तरह तरह के पॉलिसी सर्कुलर निकलते हैं, हमारे पास भी आते हैं,
बट फ्रेंकली स्पीकिंग वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। जब कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम प्लान करते हैं, चाहे कोई एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है, एक रेलवे स्टेशन का कंस्ट्रक्शन है, एक हाईवे का कंस्ट्रक्शन है, एक फुट ओवर ब्रिज का है, एक टॉयलेट का, कुछ भी है, चाहे हम घर में ही एक कमरा बनाते हैं, अगर हम प्लानिंग करते टाइम इस चीज़ का ध्यान रख लें कि हमें दूसरे एंगल से भी देखना है, इट हैज़ टू बी एक्सेसिबल टू ऑल, इट हैज़ टू बी एक्सेसिबल टू दिव्यांग, तो उसमें ना तो मेरा बजट बढ़ने वाला है, ये सिर्फ एक सोच का सारा खेल है। अगर सोच में ये शामिल हो जाए कि आज कोई भी डिज़ाइन फाइनल होता है, अप्रूव होता है, उसकी 4 चेकलिस्ट हैं, कोई उसमें मेरा सेफ्टी ऑडिट भी होता है, सस्टेनेबिलिटी ऑडिट भी होता है, और भी 4 तरह के उसमें ऑडिट शामिल हैं, बट ये आज के दिन मेरा ऑडिट नहीं होता है। सो दैट्स ए वेरी क्रिटिकल थिंग, बिकॉज अभी जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पूरे देश में कंस्ट्रक्शन के ऊपर भारत सरकार का विशेष जोर है, और नेशनल हाईवे हो, रेलवेज हो, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट्स हो, मेजर एक्सपेंडिचर पिछले 2014 के बाद से जिस गति से इन सब क्षेत्रों में बढ़ा है, कभी नहीं बढ़ा, और ये सदा इस लेवल पे नहीं रहेगा। इट इज़ नेक्स्ट 10 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन पे करके हम एक लेवल पे पहुंच जाएंगे, देन इट विल टेपर डाउन। बट इसमें डर ये है कि अगर इस टाइम हमने ये सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट नहीं की, तो फिर जो चेंज करने की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होगी, एंड वी नीड टू अवॉइड दिस। पिछले पैनल में डॉक्टर रथ एक पैनलिस्ट थे, और उनकी बात मेरे को बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें हमारी राइट हैं, हम हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं हम अपने राइट्स के लिए असर्ट करें। सो आई ऑल्सो एग्री विद दैट पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज कुछ चीज़ों के लिए गवर्नमेंट ने रेगुलेशन बनाए हैं, और बट इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ सेंसिटिविटी। सो इसमें मेरा सार्थक को या दूसरे जो NGOs से लोग हैं, या मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस से भी जॉइंट सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं, जो एडवोकेसी है, जो चेंज होता है कहीं भी हो, चाहे हम अपने अंदर देखें या ऑर्गेनाइजेशन में, चेंज हमेशा विद इन होता है। सो जो लोग मेरा डिज़ाइन प्रिपेयर कर रहे हैं, क्रिएट चैम्पियंस इन द फील्ड ऑफ द पीपल, आजकल सारे डिज़ाइन कंसल्टेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। यू विल हैव टू क्रिएट champions among the consultants who are designing, among the engineers who are building, because policy level पे policy maker में, bureaucracy में आपने advocacy काफ़ी कर ली है, but उससे change एक सतही change आएगा, बहुत ज़्यादा change नहीं आने वाला है unless until जो लोग actual काम कर रहे हैं उनको इससे sensitize करना पड़ेगा। जो construction agencies हैं देश की 8-10 बड़ी, उनके साथ आपको काम करना पड़ेगा कि आप सेफ्टी की जब चेकलिस्ट बनाते हैं तो उसको डिसेबिलिटी की भी एक चेकलिस्ट बनाइए। आपका कोई भी डिज़ाइन हो वो डिसेबल फ्रेंडली होना चाहिए। कुछ मैं एग्जांपल भी आपको देना चाहूँगा, जैसे फुट ओवर ब्रिज होता है, हम अक्सर हाईवे पे बनाते हैं। पहले सारे फुट ओवर ब्रिज जितने भी बनाते थे वो सीढ़ियों के होते थे। फिर जब ये पॉलिसी आई तो हमने यह डिसाइड किया कि हम कोशिश करें कि जितने भी फुट ओवर ब्रिज बने वो रैंप के साथ बने, तो व्हील भी, चेयर भी जा सकती है, बड़ी आयु के लोग भी उस पर जा सकते हैं कंफर्टेबली। और इनफैक्ट हमारे मंत्री जी की हमेशा ये होती है कि कोई भी फुट ओवर ब्रिज बने तो लिफ्ट होनी चाहिए। सो बट देर आर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स एक लिफ्ट लगाने में, बट रैंप एक ऐसी चीज़ है बाई एंड लार्ज हर फुट ओवर ब्रिज के साथ बन सकता है। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं हमेशा, वहाँ अल्टरनेट हम इन टर्म्स ऑफ लिफ्ट कर सकते हैं, बट अर्बन एरियाज़ में एज ए पॉलिसी हम कर रहे हैं, बट इसको 100% हमें करना होगा। जितने भी हम फुटपाथ और वॉकवेज बना रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं, बट आई एम ऑनेस्ट कि वो नहीं हो रहा है। ये बड़ा क्षेत्र है जिस पे काम करना है। अभी बैठे बैठे ही मेरे को एक ख्याल आया कि अभी हम वे साइड एमिनिटीज़ नए हाईवेज पे डेवलप कर रहे हैं, उसमें जो टॉयलेट बन रहे हैं क्या दिव्यांग के लिए टॉयलेट है? तो मैं बीच में उठ के गया, मैंने अपने लोगों से पूछा कि है कि नहीं है, उन्होंने कहा नहीं है। सो टुडे वी हैव डिसाइडेड, आई हैव ऑलरेडी गिवन डायरेक्शन कि जो भी वे साइड एमिनिटी में टॉयलेट बनेंगे उसके अंदर एक सेपरेट दिव्यांग का टॉयलेट होगा और वो एक्सेसिबल होगा। सो इस तरह की चीज़ें हैं, अगर हम करेंगे तो मिल के आगे बढ़ेंगे और जो भी विकास होगा उसका सभी को उसका फ़ायदा मिलेगा।
दूसरा एक क्षेत्र है एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज आप एक्सेसिबिलिटी एक बेसिक राइट है किसी का भी, वो हमें देना है, बट एक डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए किसी को हमें उससे आगे देखना है, जो कि सार्थक और आप सब लोग मिलकर उस पर काम कर रहे हैं। और आज के दिन कंस्ट्रक्शन एक ऐसा सेक्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, और अगले 10 साल तक इसमें एम्प्लॉयमेंट इसी दर से बढ़ता रहेगा जब तक गवर्नमेंट की कैपिटल एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग इसी दर पे रहेगी। बट इस क्षेत्र में अभी तक कोई प्रयास हमारी तरफ से भी नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ से भी नहीं हुआ है कि इसमें दिव्यांग लोगों को इन्वॉल्व किया जाए। एक परसेप्शन है कि कंस्ट्रक्शन में ये लोग नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। कुछ दिन पहले ही मेरी डॉक्टर जितेंद्र से बात हो रही थी इस इशू पे कि सजेशन इन्होंने दिया टोल प्लाजा पे रख सकते हैं क्या, तो टोल प्लाजाज पे कुछ पे इन्होंने भी बात की, कुछ लोग रख रहे हैं। वो तो एक बैठ के करने वाला काम है, उसमें तो बहुत छोटा एम्प्लॉयमेंट है, बट दैट इज़ व्हाट कैन बी डन, बिकॉज टोल प्लाजाज पे पहले आप लोग भी हाईवेज पे ट्रेवल करते होंगे, देखते हैं बदमाश टाइप के लोग रहते थे, लड़के रहते थे। ज़्यादातर टोल प्लाजाज पे आज वुमेन हैं, आप देखेंगे कि उससे उनका व्यवहार भी शालीन रहता है, लड़ाई झगड़े भी नहीं होते और प्रेम से वो अपना काम करती हैं। बट उसमें एक आगे बढ़ते हुए दिव्यांग जन का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट सभी टोल प्लाजाज पे हो सकता है। बट कंस्ट्रक्शन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं, बहुत ऑफिस वर्क होता है उसके अंदर, और बहुत सारे काम है जिसमें बहुत ज़्यादा फिजिकल लेबर इन्वॉल्व नहीं होती। किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे 10% के करीब एम्प्लॉयमेंट ऐसा होता है जिसमें PWDs को हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, उनको गेनफुली एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं। और इसका एक देखिए सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा, अभी आप जो एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं वो एम्प्लॉयमेंट Tier 1, Tier 2, Tier 3 सिटीज़ तक है। बट कंस्ट्रक्शन एक ऐसी है कि हर गांव में होती है, देश के हर कोने में होती है। जो ये माइग्रेशन की प्रॉब्लम है, ये माइग्रेशन की प्रॉब्लम उससे ख़त्म हो जाएगी। जो बच्चा है अपने घर में रह के काम करेगा तो उसके लिए भी उपयोगी होगा। और इसको करने के लिए स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री उसको फंड करती है। ऑलरेडी देयर डिफरेंट NGO जो कंस्ट्रक्शन के लिए अनस्किल्ड से स्किल्ड का प्रोग्राम चलता है। आपको स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के साथ लग के उसमें ये करवाना है कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें दिव्यांग्स को शामिल किया जाए। वो जैसे ही स्किल होंगे, बिकॉज अच्छे स्किल्ड लोगों की देश में बहुत कमी है। हमारे एम्प्लॉयमेंट रेट इतने हाई हैं, बट अगर आपको स्किल्ड लोग चाहिए, आज भी हर कंस्ट्रक्शन साइट पे 20 से 25% स्किल्ड वर्कर्स की कमी है, जो कि सतही तौर पे दिखती नहीं है। बट वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन की कंस्ट्रक्शन डिले होती हैं, प्रोजेक्ट डिले होती हैं, मशीनरी नहीं है, मटेरियल नहीं है। इट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर ऑन कंस्ट्रक्शन साइट्स। सो दिस इज़ वन एरिया वेयर सार्थक एंड इट्स जो साथी NGOs हैं और जो जुड़े हुए हैं उस पर आप लोग काम कर सकते हैं। और हम भी कोशिश करेंगे कि जितना सहयोग हो सकता है इसमें करके हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। सो ये विषय ऐसा है, मैं ज़्यादा उस पर ना तो जानता हूँ ना बोल सकता हूँ, बिकॉज़ यहाँ पे सब लोग हैं इस विषय पे एक्सपर्ट हैं और सारी चीज़ें करते हैं। बट 2 चीज़ों पे मैं आप लोगों के साथ काम करना चाहूँगा, और जो भी सहयोग होगा, चाहे वो पॉलिसी लेवल पे हो, चाहे वो इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे हो, बट सबसे ज़रूरी है कि जो डिज़ाइनिंग में लोग काम कर रहे हैं उनको इन पॉलिसीज़ से अवगत कराना, उनको इससे सेंसिटाइज करना। इससे एक बड़ा सी चेंज आएगा। जो आप देख रहे हैं कि पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, कोई सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट या मिनिस्टर ऑफ डिपार्टमेंट कभी नहीं चाहते कि पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं है। दे वॉन्ट फ्रॉम देयर हार्ट, बट प्रायोरिटीज़ का इशू है, बिकॉज उनकी अपनी हमारी प्रायोरिटी है कि कितने किलोमीटर हम बना दें इस साल में, कितने ब्रिज बना दें, तो दूसरी चीज़ें उसमें पीछे छूट जाती हैं। तो ये आप अगर करेंगे तो इसमें गेनफुल एम्प्लॉयमेंट हो सकता है और लोगों को बड़ी सहायता मिल सकती है। धन्यवाद। थैंक यू मनोज कुमार जी, आपने बहुत बेसिक पॉइंट्स इसमें अपने स्पीच में रेज किए, जैसे फुट ओवर ब्रिज विद रैंप। अगर रैंप नहीं है तो फुट ओवर ब्रिज PWDs के लिए बेकार हो जाता है। एडवोकेसी विद डिज़ाइनिंग एजेंसीज, क्योंकि जो पॉलिसीज़ बनती हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए डिज़ाइन स्टेज पे उसको इंक्लूड करना ज़रूरी है। एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन हाईवेज लाइक वे साइड एम्यूनिटीज़ शुड बी एक्सेसिबल टू द PWDs, जिसके लिए आपने अभी
यहाँ बैठे बैठे ही एक्शन ले लिया है, एंड वी आर रियली थैंकफुल टू यू फॉर दैट. एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन दी कंस्ट्रक्शन सेक्टर, बिकॉज कंस्ट्रक्शन सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है, जैसे मनोज जी ने बताया, और सब जगह है ये, गांव में, Tier 1, Tier 2 सिटी टाउन्स में. तो आई थिंक लॉट ऑफ फूड फॉर थॉट फॉर अस and for our like-minded NGOs. I think we will try to work on all these points. Thank you so much for sharing your thoughts. May I now request Rajkumar Makkad ji. He is serving as State Commissioner for Persons with Disability, Haryana. He has served as Deputy Advocate General for Government of Haryana from December 14 to March 20, about 5 years. His vast area of practice including all kinds of civil and criminal matters, including labor and service matters, motor vehicle, land acquisition, family matters, insurance, consumer, etc. before High Court, CAT, Tribunal, Commission, various district and trial courts, Railway Accident Tribunal, State Consumer Commission, etc. I mean, he has not left any area. He has high disposal rate of cases before the High Court. He has been among top experts on an online legal platform, which is www.lawyersclubindia.com. So over to you, Rajkumar Makkad. मंच पर उपस्थित समाज और राष्ट्र के मूर्धन्य अग्रगण्य बंधुओं, इस सभागार में उपस्थित मातृशक्ति भाइयों और बहनों, मैं सार्थक का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया कि मैं आप सबसे अपने विचारों को साझा कर सकूं। पिछले दिनों ही माननीय राष्ट्रपति महोदया के द्वारा मुझे सर्वश्रेष्ठ राज्य आयुक्त दिव्यांगजन का पुरस्कार प्रदान किया गया है, और उसके पश्चात दिल्ली में ये मेरा पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है। हरियाणा में तो कल और पिछले दिनों लगातार चलते ही रहे हैं, और आज भी अभी मुझे यहाँ से फरीदाबाद जाना है। दिव्यांगजन की अनेक प्रतियोगिताएं और खुला दरबार वहाँ रहने वाला है, और कल मुझे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश नरसिंहपुर में वहाँ जाना है, वहाँ भी दिव्यांगजन के कार्यक्रम होने वाले हैं। अंधेरा है चिल्लाने से कभी अंधेरा गया नहीं। सबको पता है अंधेरा है, दिया सलाई दिखाना किसने मना किया है? अंधेरा तो दिया सलाई दिखाने से जाएगा। समस्याएं हैं, दिव्यांग का जीवन दिव्यांग समाज का सबसे उपेक्षित दुर्लक्षित वर्ग है। ये बार बार कहने से इसकी समस्या का समाधान होने वाला है नहीं। मैं इस अवसर का उपयोग करना चाहूँगा। हरियाणा में कुछ चीज़ें हमने ऐसी लागू की हैं दृढ़ता के साथ, जिनके परिणाम आए हैं, और संभवतः भारत सरकार ने भी उसको स्वीकार किया है, और इसी कारण से राज्य को सर्वश्रेष्ठ आयुक्त दिव्यांगजन का पुरस्कार भी प्रदान किया है। पहली जो समस्या रहती है सामान्यतया वो दिव्यांग प्रमाण पत्र की रहती है। कोई भी लाभ मिलेगा तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट से मिलेगा, और उसकी प्रक्रिया बड़ी अब तो भारत सरकार ने सरल की है ऑनलाइन, लेकिन इसको हमने सख्ती से लागू किया। वो ये कि सभी सब डिवीज़न, हरियाणा के 125 ब्लॉक्स हैं और हमारे 70 जो है सब डिवीज़न है, 22 ज़िले हैं। सभी सब डिवीज़नों के ऊपर हमने हर बुधवार को 11 बजे से 1 बजे तक समय निश्चित करके ऑनलाइन पहले आपको कॉमन सर्विस सेंटर पे पंजीकरण कराना है, एंड ओनली देयर आफ्टर यू हैव टू कम टू द हॉस्पिटल, ओनली ऑन द कॉल ऑफ द हॉस्पिटल, नोट कि भाई जा कर के वहाँ भीड़ बढ़ाएंगे, नो। सब डिविजनल हॉस्पिटल, उसमें भी पैनल पूरा होगा, और किसी को लगता है कि डिसेबिलिटी रीअसेसमेंट में कम हो गई या ज़्यादा हो गई, then for the first time in the history of Haryana we have also introduced a scheme of appeal. Now any aggrieved person can file an appeal before the Director General Health Services Haryana online
or offline, and that appeal is required to be decided within a period of 1 month. So that is a new thing which we have done. And दूसरी बात यह है कि बहुत सारे दिव्यांग ऐसे हैं, खासतौर पे मैं कहना चाहता हूँ जो इलाइट वर्ग है, वो अपनी दिव्यांगता को जाहिर ही नहीं करना चाहते। वैसे तो कहते हैं पूर्ण तो परमात्मा है, परमात्मा के नीचे हम सारे ये पूर्ण हैं, इसलिए हम सारे दिव्यांग हैं। लेकिन फिर भी पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिसकी डेफिनेशन RPWD एक्ट में भी आई है और उससे पहले PW एक्ट 1995 में भी थी, तो उनको सर्च करना पड़ेगा, बहुत लोगों की शर्म भी निकालनी पड़ेगी और बहुत लोग अनअवेयर भी हैं, दे डोंट नो इफ देयर इज एनी फैसिलिटी फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी और नॉट। तो उनको हमने क्या करा, एक स्कीम ली। हरियाणा के जितने भी आशा वर्कर्स हैं, हर गांव में, हर मोहल्ले के हिसाब से एक आशा वर्कर है जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के अंडर काम करती है। हर गांव में, हर मोहल्ले के अंदर, शहर की भी हर बस्ती के अंदर आंगनवाड़ी सेंटर चलते हैं। हमने इनको काम पे लगाया और उनको सर्च करना है, घर घर पे सर्च करना है। उसका लाभ क्या हुआ? उसका एक तो जो दिव्यांग बहुत बड़ी तादाद में सामने आए, फर्स्ट टाइम उनको बताया गया ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, कुछ नहीं करना भैया, आपको ये से रजिस्ट्रेशन करना कॉमन सर्विस सेंटर पे। नहीं हो पाया, वहीं करवा दिया, मौके पर हमने रजिस्ट्रेशन करवाया। आपको कुछ नहीं करना, कहीं नहीं जाना, आपका परिवार पहचान पत्र हरियाणा में हर फैमिली को दिया है हमने, परिवार पहचान पत्र, फैमिली ID, और 1,80,000 रुपये से कम जिनकी सालाना इनकम है उनको हमने कहा अंत्योदय फैमिली। All benefits, all government benefits are now connected with the PPP, PPP परिवार पहचान पत्र। उस दिव्यांग का नाम बहुत सारे परिवारों ने बतौर दिव्यांग नहीं लिखवाया हुआ, फैमिली मेंबर तो है, बट फैमिली मेंबर भी उसका दिव्यांग ना होने के कारण उसको बेनिफिट नहीं मिलते थे। तो नाउ वी टुक ए स्पेशल कैंपेन बाय विच द PPP वाज आल्सो अमेंडेड, उसमें करेक्शंस की गई। इनकम की भी बहुत लोगों ने जानबूझ करके कम ज़्यादा जो भी लिखवाई थी उसको भी ठीक किया गया। तो उसका परिणाम ये हुआ, दिव्यांग सही मात्रा में सामने आए, और जिनकी डेथ हो चुकी थी या शिफ्ट हो चुके थे और वो हमारे स्टेट एक्सचेकर पर एक वजन भी थे, क्योंकि हरियाणा सरकार 2,500 रुपया, 2,500 रुपया प्रत्येक दिव्यांग को पेंशन प्रदान करती है। 1,97,000 1,97,000 एंड समथिंग मोर वो पेंशनर हैं एज ऑन डे, जो सर्विस में नहीं है उन सबको। इसके अलावा 32,000 ऐसे दिव्यांग स्टूडेंट हैं, CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जो एनरोल्ड हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में। हमने ये कैंपेन लिया, उनको सर्च करो, उनको स्कूल में दाखिल कराओ। गवर्नमेंट स्कूल में आएंगे तो हम सबको मालूम है फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर एज पर RPWD एक्ट चैप्टर 2 में मैंडेटरी है। बट इसके अलावा हमने ये किया, बहुत सारे ऐसे चिल्ड्रन भी हैं जो स्कूल में आ ही नहीं सकते ड्यू टू देयर फिजिकल कंडीशन और देयर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और वट एवर द रीजन, और भी रीजन हो सकते हैं, और आएंगे तो दे आर सो वायलेंट कि कुछ नुकसान भी कर देंगे। तो ऐसों को हमने कहा कि घर पे रहिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए स्पेशल एजुकेटर्स हरियाणा के 125 ब्लॉक, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, तो 750 special educators have already been employed by the government of Haryana, and we are going to employ more than 2,000 for that purpose. The file has already been cleared and the process is going on. Within some days we shall get this done. तो वो स्पेशल एजुकेटर उनके घर पे जाएगा। ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं आ सकते, होम बेस्ड, उनको 1,950 रुपये हम पेंशन देते हैं। पेंशन कहिए, उनको इंसेंटिव कहिएगा, तो वो इंसेंटिव 1,950 एंड सच चिल्ड्रन आर 21,000 आउट ऑफ 32,000। 21,000 चिल्ड्रन हैं उनको। तो पहला काम हमारा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, सेकंड इज एजुकेशन। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल में जा सकता है, RPWD एक्ट में लिखा हुआ है, वो ऑप्शन उसकी है, स्पेशल स्कूल में जाए, एडेड में जाए, अनएडेड में जाए, गवर्नमेंट में जाए, चॉइस उसकी है। लेकिन ये होता नहीं है प्रैक्टिकली, क्योंकि प्राइवेट स्कूल कहते हैं कि असी कड़ा सरकार तो कोई लेने हैं, वाई शुड वी गिव द एडमिशन टू लाइबिलिटी। क्यों? हमने कहा कि नो, सेक्शन 89 इज देयर, पैनल प्रोविजन, वी एनफोर्स पैनल प्रोविजन थ्रू स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटीज।
And today you might have seen a news item, टाइम्स ऑफ इंडिया में आज ही छपा है, गुरुग्राम में रास्ता करके एक होटल है बहुत ज़बरदस्त, तो उसमें सृष्टि पांडे लखनऊ से आई थी वो, और उसको वहाँ प्रवेश नहीं दिया था, तो आई टुक सुमोटो कॉग्निजेंस and 1 lakh penalty has been imposed upon that rasta, and that shall be provided to an NGO, Helen Keller Sirsa, which is running for the visually impaired. So ये काम हमने शुरू करा। फिर क्या है कि जब तक आप किसी का पेट भरने का इंतजाम नहीं करते दिव्यांग का, आप भाषण दे लो, कॉन्फ्रेंस कर लो बहुत अच्छी अच्छी, उससे क्या चलेगा? आप समझा लो उसको RPWD के प्रोविज़न, अरे नहीं चलेगी भाई, उसका पेट लगा है, उसकी फैमिली लगी है, और इंक्लूजन भी तभी होगा सोसाइटी में। एम्पावरमेंट जब तक आप नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। हमने काम किया, हमने किया 1 जनवरी 1996 से, हालांकि 7/2/1996 से PWD एक्ट लागू है। हमने कहा कि छोड़ो यार, 1 जनवरी 1 जनवरी 1996 से इनकी जितनी पोस्टें बनती थी, 3% रिजर्वेशन था इन जॉब्स एज पर PWD एक्ट 1995, बट हुआ कहाँ? कैलकुलेट करो, इनकी सीटें जो खा गए वो तो हम उनको डिसमिस नहीं कर सकते, इनकी कैलकुलेट करो भाई। कैलकुलेट किया एंड आई वाज मेड एज द नोडल एजेंसी फॉर द एंटायर हरियाणा। हरियाणा में 90 डिपार्टमेंट हैं, 14 यूनिवर्सिटियाँ हैं, 14 कॉरपोरेशन हैं, मेडिकल कॉलेजेज हैं, और एडेड इंस्टीट्यूशन करीब 250 हैं जो गवर्नमेंट एड देती है। तो ये मिला करके लगभग 500 की संख्या बैठती है। तो इन सब के रोस्टर रजिस्टर्स, उनको वेरीफाई करने का काम स्टेट कमिश्नर को लगाया गया। रोस्टर रजिस्टर चेक करो, क्योंकि डिपार्टमेंटों ने तो लगाना होता है, पहले ही लगा लेते। वहाँ तो एबल बॉडीड कहाँ साइन करते हैं कि भाई डिफरेंटली एबल्ड भी आ जाएं, ये डिसेबल्ड थोड़ी हैं, डिफरेंटली एबल्ड हैं। बट उसको करने का परिणाम ये हुआ, करीब करीब 15,000 नई पोस्टें दिव्यांगजन के लिए एक्रू हुई, उसकी स्पेशल ड्राइव प्रारंभ हुई, और पहली बार ऐसा हुआ होगा शायद भारत में भी, 103 मेडिकल ऑफिसर दिव्यांग अपॉइंट हुए अभी अभी पिछले महीने उन्होंने ज्वाइन किया है। किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, और ब्लाइंड तो लग नहीं सकते, हियरिंग इम्पेयर्ड होंगे, कुछ थैलेसीमिया होंगे, ये सारे मिला करके 103 डॉक्टर और 2,500 पैरामेडिकल स्टाफ वो लगा। और अभी टीचर्स हमने ऐड किया हुआ है, और पीछे हमने 40,000 पोस्टें निकाली हैं, उसमें 4% रिजर्वेशन दिया दिव्यांगजन को। तो वो एक एम्पावरमेंट का काम किया। इसके अलावा एक और काम था जो पहली बार शायद शुरू हुआ, राजीव गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में डिसाइड करा। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और तमाम सरकारों ने रिजर्वेशन इन प्रमोशन प्रारंभ किया। लेकिन बहुत सारी गवर्नमेंट ने इन चंडीगढ़, मैं चंडीगढ़ से आया हूँ अभी, तो पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ तीनों की राजधानी है। चंडीगढ़ यूटी ने और पंजाब ने इसको लागू किया 1/4/2017 से, और हमने लागू किया 1 जनवरी 1996 से। 3 कार्डर पार हो गए दिव्यांगजन एम्प्लॉई, whosoever was employed, he now getting the promotion, reservation in promotion on the basis of 3% up to 18/4/2017 and thereafter 4%. So लगभग 15,000 दिव्यांग कर्मचारी इससे लाभान्वित हुए हैं। 2 नोशनल है, रिटायर्ड हो गए बहुत सारे लोग, और बहुत सारे लोग दुनिया से भी रिटायर हो गए। वैसे है तो ये बहुत, मैं समझता हूँ शासन और प्रशासन पे क्वेश्चन मार्क है, मैं भी इसका पार्ट हूँ। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि आपने आज उसको प्रमोशन दे दी जबकि वो दुनिया से चला गया। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। क्या दिया आपने? डॉक्टर जो कह रहे थे, आई डू एग्री विद हिम, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट उसका पॉजिटिव एंगल भी है। दिस इज़ ए प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन शेयर आवर व्यूज। पॉजिटिव बात भी आनी चाहिए, हमेशा नेगेटिविटी का जिक्र करके कभी नेगेटिविटी भागती नहीं है। तो वी हैव डन दिस थिंग। फिर बहुत सारे ऐसे दिव्यांग भी तो है ना जो ना तो नौकरी कर सकते, उनको 4% रिजर्वेशन आपने दे भी दिया तो क्या काम का है, वो ना तो इतने पढ़े लिखे हैं या ओवर एज हो चुके हैं, उनका क्या करोगे भाई?
2,500 रुपये में तो परिवार नहीं चलता, उस बेचारे के पैर कटे हुए हैं, हाथ कटे हुए हैं, कुछ भी है। तो हमने 2 स्कीमें शुरू की। एक क्या, हर हित रिटेल स्टोर। हर आदमी को किराना का, जनरल परचूनी का सामान सबको खरीदना पड़ता है, आटा दाल चावल घी सबको खरीदना है। तो हमने हरियाणा में अभी 2000 हर हित रिटेल स्टोर खोले हैं गवर्नमेंट ने, रिटेल शॉप्स। उसमें 200 स्क्वायर यार्ड की जगह चाहिए, वो किराए की हो, अपनी हो, शहर में हो, मोहल्ले में हो, कोई दिक्कत नहीं। दिव्यांग को हमने उसमें 10% रिजर्वेशन दिया है। हम इसको 50,000 करने वाले हैं। 50,000 रिटेल शॉप्स हम खोलने जा रहे हैं। 2,000 खोल चुके हैं। 10% रिजर्वेशन फॉर दी पर्सन विद डिसेबिलिटीज है। 1.5 लाख का सामान सरकार उसको मुहैया कराएगी, फ्री नहीं देगी, उधार देगी, क्योंकि हम दिव्यांग को ऐसा नहीं बनाना चाहते दे दो दे दो दे दो। नो, स्वाभिमान जब तक दिव्यांग के अंदर खड़ा नहीं होगा तब तक एम्पावरमेंट भी नहीं आएगी, इंक्लूजन भी नहीं होगा। उसको भिखारी नहीं बनाना है। हाँ, उधार लेना तो संसार का नियम है, आज मुझे ज़रूरत है, मैं ठीक है ले रहा हूँ, ब्याज पे ले रहा हूँ। तो 1.5 लाख का, उसमें 10% उसका मुनाफा हम सुनिश्चित करते हैं। 15,000 रुपये में घर चल जाएगा। और यहाँ तक कर दिया कि इसके अलावा भी आप कोई सामान रखना चाहते हैं, सरकार ने कमोडिटी प्रिस्क्राइब कर रखी हैं, ये चीज़ें हम आपको देंगे। एक ट्रक आता है, वो ट्रक, एक गांव में 4 शॉप्स हैं, उनको सामान ऑलरेडी मोबाइल पर आपने बताया हुआ है, सामान लिखवाया हुआ है, व्हाट्सअप किया हुआ है, वो सामान आपको देते जाएंगे, उसका हिसाब हो जाएगा। और वो अगले गांव में इसी ढंग से आप फिर दोबारा बुलवाओगे तो दोबारा आ जाएंगे। महीने में आप एक बार 1.5 लाख ही क्यों, आप 5 लाख का सामान बेचो, 10 लाख का सामान बेचो, आपकी हिम्मत के ऊपर है। 10% प्रॉफिट गवर्नमेंट सुनिश्चित करेगी। बढ़िया स्कीम है कि नहीं। इसके अलावा एक स्कीम और की, हरियाणा में 7 मिल्क प्लांट है। हमारे पड़ोस में बल्लभगढ़ में भी है, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। हरियाणा के 22 डिस्ट्रिक्ट को हमने 7 मिल्क प्लांट के अंडर लाया हुआ है। 3 डिस्ट्रिक्ट्स मिलाए हुए हैं उसके। तो मिल्क प्रोडक्ट्स, उसके लिए हरियाणा में एक पेटेंटेड है, वो वीटा नाम दिया हुआ है हमने। तो वीटा बूथ वो हम अलॉट करते हैं, उसमें भी हमने दिव्यांगों को 10% रिजर्वेशन दे दिया। 20 का रोस्टर और 1st and 11 नंबर आर फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज। और ऐसे हम हरियाणा में अभी 500 खोल चुके हैं दिव्यांगजन के, और इसमें खुलने जा रहे हैं। स्कूल में भी जो क्लास 11 और 12th में पढ़ने वाले दिव्यांग बच्चे हैं, उसके लिए भी हमने किया, यहीं से रोज़गार शुरू करो भाई, क्योंकि 11-12 क्लास में दिव्यांग के लिए जाना भी मतलब कई तो ओवरेज हो चुके होते हैं। तो हमने क्या करा, 7 की एक कमेटी बनाई, उसमें 3 दिव्यांग बच्चे, 3 सामान्य बच्चे, 1 स्पेशल एजुकेटर। 7 लोगों की कमेटी, जो मुनाफा होगा वो वहाँ बटेगा, कुछ स्कूल में रहेगा। तो ये हमने शुरू करा। अब है स्किल ट्रेनिंग। स्किल जब तक नहीं होगा, तो मेरे से पिछले वक्ताओं ने भी कहा है, तो इनका इंक्लूजन कैसे होगा, तो काम कैसे मिलेगा। फ्रेंड्स, आई एम टेकिंग मोर टाइम। Yes, I shall conclude within, if you permit me, only 3 minutes. Okay, thank you. Yes. So for that purpose, in all ITIs of Haryana, we have started the training courses for the person with disabilities. Specifically in Gurugram, we are having Skill University. Skill University is a government university where we have started 3 courses. In Panchkula, in Kurukshetra, we have also started some engineering courses for the person with disabilities. So to make them empower, it is necessary that they should be skill holder, so that their inclusion in the factories, in the private companies, in the corporate sector may be made. Various meetings with the corporate sector have also been taken place. हम कॉर्पोरेट सेक्टर की रिक्वायरमेंट क्या है वो हमने पूछा है, और उसके हिसाब से उनके मार्गदर्शन में हमने फरीदाबाद, गुरुग्राम, मुरथल इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप हो रहा है हमारे सोनीपत में, और बावल जो हमारे रेवाड़ी में जयपुर हाईवे के पास में, वहाँ पर हमने उनके सानिध्य में ये काम किया है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, हरियाणा में हमने 7 इंस्टीट्यूट हमारे हीयरिंग इम्पेयर्ड के हैं,
राज्यपाल उसके चेयरपर्सन हैं। हमने गवर्नमेंट की कमेटी गठित की हुई है, उसमें एक अभिनव प्रयोग मैं कह सकता हूँ जो भारत में शायद कहीं नहीं हुआ होगा। एक्चुअल जो ट्रांसलेटर्स हैं उनको तैयार करने का काम वो उनके द्वारा हो रहा है। 7 विजुअली इम्पेयर्ड स्कूल हैं, 7 इंटेलेक्चुअल डिसेबल्स के हमारे पास स्कूल्स हैं, स्कूल हॉस्टल दोनों, और फ्री ऑफ कॉस्ट वो सब चलते हैं। इसके अलावा एक लाइफ सेंटर अम्बाला में हमने 37 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से, वो हमारा कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन है। वी आर होपफुल कि इस साल तो नहीं हो पाया, तो अप्रैल 1 तक हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। और उसमें अभी 100 बेड का हमने किया है। जो मानसिक रूप से दिव्यांग है वो वहीं पर ही रहेगा, उसका जीवन वहीं पर, योग प्राणायाम स्कूल सब कुछ वहाँ पर उसका रहने वाला है। तो ये एक इंक्लूजन के लिए हमने एक प्रयोग किया है। इसके अलावा एक्सेसिबिलिटी के लिए फरीदाबाद और गुरुग्राम 2 ज़िले हमने अभी मॉडल लिए हैं। अभी हरियाणा में कोई भी नक्शा पास होगा, चाहे मकान का है, दुकान का है या पब्लिक बिल्डिंग जिसको हम कह सकते हैं, पब्लिक बिल्डिंग की डेफिनेशन बहुत व्यापक दे रखी है RPWD एक्ट में। तो जो पब्लिक यूज करती है उसका नक्शा तब पास होगा जब वो एक्सेसिबल होगा। तो ये हमने उसी के अंदर डाल दिया है ताकि केवल भाषणों में चीज़ ना रहे। इसी तरह से दिव्यांगों को स्क्राइब की बड़ी प्रॉब्लम आती थी, लेखक की पढ़ने वालों को, उसके लिए भी हमने UPSC के पैटर्न पर काम करा है। बहुत सारे भवन एक्सेसिबल इसमें किए हैं, बहुतों पर जुर्माने लगाए हैं। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो हमने साइन लैंग्वेज पे बहुत अच्छा काम करा है। उस पर हमने क्या करा कि प्रिंटर्स दिए हैं डिपार्टमेंट्स को, जो ब्रेल वाले प्रिंटर्स जो हैं वो दिए हैं। और साइन लैंग्वेज के लिए बैंक बनाया हमने हर डिस्ट्रिक्ट में। अभी ज़्यादा लोग नहीं हैं, 5-5 लोग हमने उस बैंक में रखे हैं। क्योंकि पिछले दिनों आया एक सेशन जज का फ़ोन आया मेरे पास कि वो एक रेप हो गया एक लड़की के साथ जो विजुअली भी इम्पेयर्ड है, हियरिंग इम्पेयर्ड है, स्पीच इम्पेयर्ड भी है, तीनों प्रकार का है और वो पहचान भी नहीं सकती, बट वो चीज़ें एक्सप्रेस कर रही है जो। तो कुल मिला करके इंटरप्रेटर नहीं मिले, तो उस पर फिर दिमाग में आया कि भाई ये तो कैसे चलेगा, हम बात कर रहे हैं इंक्लूजन की। तो भी ट्राइड और बेस्ट। सो बहुत सारी चीज़ें हैं बताने को, लेकिन समय की मर्यादा है। मैं इतना ही कह सकता हूँ, अवेयरनेस बहुत आवश्यक है। मैंने 1200 हरियाणा के विभिन्न स्थानों पर, 1200 में कस्बे शहर तो ख़त्म हो ही गए स्वाभाविक, नीचे गांव लेवल तक 1200 से ज़्यादा अवेयरनेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार से किए हैं। हज़ारों लोग उसके कारण से अवेयर हुए हैं, सेंसिटाइजेशन हुआ है। और हरियाणा में पहली बार शायद ऐसा हुआ है जो RPWD एक्ट 2016 का चैप्टर 16 जो भी स्पेशल कोर्ट्स सिर्फ ये एनफोर्स करती थी, उसको एनफोर्स किया है स्टेट कमिश्नर के माध्यम से। DGP को छोड़ करके चीफ सेक्रेटरी भी छूटा नहीं जिसके खिलाफ फाइन ना लगा हो। तो ये भी करना पड़ा है। तो अगर हम इन पॉजिटिव स्टेप्स को या इसी प्रकार के और भी ये शेयर करेंगे तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से सार्थक जो अपना नाम सार्थक कर रही है, वास्तव में सार्थक कर रहा है, इसके साथ मिलकर, सरकारों के साथ मिलकर, समाज को लेकर दिव्यांगजन के जीवन को सफल, सुखद, मनोरम बना सकेंगे। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। समय अधिक लिया इसके लिए क्षमा याचक। राजकुमार मक्कड़ जी ने हरियाणा स्टेट के जो इनिशिएटिव हैं उसके बारे में बताया। और हमें एक्चुअली हमारा खुद दिल नहीं कर रहा था कि आप रुकें, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे काम आपने किए हैं। जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपने कहा जिसके बिना सब रुक जाता है, उसके लिए आपने स्पेशल ड्राइव चलाई। आशा वर्कर्स के थ्रू डोर टू डोर आपने इनिशिएटिव लिया। और किराना स्टोर जो आपने बताया, मतलब आपने कोई भी फील्ड ऐसा नहीं छोड़ा। इन लेटर एंड स्पिरिट आपने एक्ट को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। और मेरी तो ये आपको एक सजेशन है कि आप अपनी अचीवमेंट्स का एक राइटअप बना के हर स्टेट के साथ अगर चीफ सेक्रेटरी के साथ शेयर करें, प्रोबेबली उनको भी आइडियाज़ आएंगे। और इसमें और बहुत और राजीव जी हमारे साथ है, तो आई थिंक ही इज़ ऑल्सो already aware probably of all the works that you have done. So thank you so much for sharing with us, and really you deserve the award that you got recently.
I will now request Rajiv Sharma ji, who is an Indian Forest Service officer of 1998 batch, West Bengal cadre, and is Joint Secretary in the Department of Empowerment of Persons with Disability, Ministry of Social Justice and Empowerment. He is Masters in Public Service, Policy and Management from King's College London, member of World Commission on Protected Areas, IUCN. He has served in projects funded by multilateral international bodies like JICA, Japan International Cooperation Agency. He has wide experience of managing the national parks, wildlife sanctuaries, tiger reserves, biosphere reserves in the state of West Bengal. He has served as associate professor in IGNFA, Indira Gandhi National Forest Academy, the Staff College of Indian Forest Service. He has also served as Assistant Inspector General of Forest in National Tiger Reserve, Tiger Conservation Authority, Government of India. So with his vast experience and now with such an important post that he is holding, because all actions start and initiate at Joint Secretary level. So may I request him to deliver his address, please. नमस्कार, वंदे मातरम। सबसे पहले तो मैं सार्थक को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये प्रयास करके इस सेमिनार का, इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है और हम सभी को ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, जहाँ हम अपने विचारों को न केवल व्यक्त कर सकें बल्कि जो नवीनतम आइडियाज़ हैं उनका आदान प्रदान भी हो सके। जब बात मैं देख रहा था, जब मैं बैठा था नीचे सोफे पे, तो सामने एक महाविद्वान एवं अति आदरणीय व्यक्ति, आज वो उस दुनिया में नहीं है, डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग, उनकी एक मूर्ति रखी थी जो मेमेंटोस ग्रुप में शायद कुछ विद्वानों को प्रदान भी की गई है। तो उनका एक कथन मैं दोहराना चाहता हूँ, उसके साथ ही मैं अपना संवाद आगे बढ़ाऊँगा। वो कुछ ऐसा कह गए हैं, बहुत सारी चीज़ कह गए हैं, लेकिन रिगार्डिंग डिसेबिलिटी, क्योंकि वो भी एक विशेष प्रकार की डिसेबिलिटी से ग्रस्त थे, लेकिन उन्होंने उनके ज्ञान ने हर प्रकार की तथाकथित अक्षमता को पराजित करके उनके ज्ञान का परिचय कैसे पूरे विश्व में फहराया है, ये किसी से दोहराने की ज़रूरत नहीं है, हम सभी जानते हैं। वो कह गए हैं कि his advice to the disabled persons is that they should concentrate on those things with which their disability does not interfere in doing well, and the disabled persons should not bother and should not regret on those things with which their disability may interfere, क्योंकि हम अपनी आबादी के जिस हिस्से को हम डिसेबल्ड नहीं भी समझते हैं, उदाहरण के लिए हम बैठे हैं, हम में से आज अगर इस सभागार में अगर 70-80% लोग अपने आप को डिसेबल्ड नहीं समझते हैं, तो भी डिसेबल्ड नहीं होने के बावजूद भी हम में से कोई भी व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता है। तो इस सुझाव में बहुत बड़ा एक फ़िलॉसफी छिपी हुई है हॉकिंग साहब के। अब मैं अपने संवाद को आगे बढ़ाऊँ। मेरे सामने ये दुविधा है कि कुछ प्रश्न भी उठाए गए हैं विभाग के कुछ योजनाओं को लेकर, उनका एक पॉइंट पकड़ के उत्तर दूं अथवा विभाग के कार्यकलापों के बारे में एक संक्षेप विवरण दूं, अथवा दोनों का मिक्सचर करके संक्षेप विवरण देते समय यथासंभव उठाए हुए बिंदुओं का उत्तर भी दे दूं। तो मैं तीसरी अप्रोच को ही फॉलो करूंगा। ये विभाग आप जानते हैं भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत ये विभाग है, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, एवं भारत सरकार के नवीनतम विभागों में से एक है, जिसका जन्म मुश्किल से 1 दशक पहले ही हुआ है। इस विभाग में बहुत सारी योजनाएं हैं एवं इस विभाग में कई सारे ऑटोनोमस बॉडीज़ भी हैं जो हमारे फील्ड में प्रेजेंस के एक सशक्त प्रतीक भी हैं। पहले मैं ऑटोनोमस बॉडीज़ के बारे में बता दूं। ये जो हमारे राष्ट्रीय संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट्स, मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ जब मैं बोल रहा हूँ ऑटोनोमस बॉडीज़, और उन्हीं के एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के तहत उन्हीं के अधीन
पढ़ने वाले रीजनल सेंटर्स एवं कंपोजिट रीजनल सेंटर्स इत्यादि इत्यादि। इनकी संख्या, नेशनल इंस्टीट्यूट्स की संख्या आज की तारीख में 9 है और इनके अधीन लगभग 21 कंपोजिट रीजनल सेंटर्स हैं। ये जो हमारी बॉडीज़ है, ऑटोनोमस बॉडीज़ का जो नेटवर्क है, ये हमारे डिसेबल्ड भाई बहनों को, दिव्यांगजनों को उनको थेरेपी भी प्रोवाइड करता है, उनके रिहेबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ना केवल इतना बल्कि जो दिव्यांगता का जो क्षेत्र है, ये जो समाज, ये जो गवर्नेंस का जो सेक्टर है, एम्पावरमेंट ऑफ डिसेबल्ड पर्सन्स, इस सेक्टर के लिए HR भी अच्छी खासी मात्रा में तैयार करता है। यहाँ पे हम लोग एकेडमिक कोर्सेज रन करते हैं डिफरेंट डिसिप्लिन्स में, लाइक फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स वगैरह में। ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं ये कॉर्पोरेट जगत से भी बराबर संपर्क में बने रहते हैं एवं विभिन्न कॉर्पोरेट बॉडीज़ से, चाहे वो विशुद्ध रूप से प्राइवेट हों, चाहे वो सरकारी PSUs हों, इनको अलग अलग मात्रा में CSR की धनराशि, CSR के तहत धनराशि भी प्राप्त होती रही है। इसके अतिरिक्त ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं ये अपने एकेडमिक कोर्सेज जो इनके अटेंड कर रहे हैं, उन छात्र एवं छात्राओं के लिए एवं इनके यहाँ जो स्किल यूनिट्स चलती हैं छोटी छोटी, उसके लाभार्थियों के लिए ये एम्प्लॉयमेंट फेयर्स भी कंडक्ट करते रहे हैं एवं इनको अपने छात्र एवं छात्राओं को एम्प्लॉयमेंट दिलवाने में इनको सफलता भी मिली है। मैं अभी हाल ही की ये घोषणा है उससे आप सबको अवगत करा दूं। आप सबको जान के खुशी होगी कि मंत्रालय ने ये निर्णय भी लिया है कि अगर कोई व्यक्ति दिव्यांगता से ग्रस्त है एवं हमारे NIS के एकेडमिक कोर्सेज का स्टूडेंट है तो उसकी पूरी फीस माफ़ की जाएगी। साथ ही में एक ये और निर्णय लिया गया है कि जब हम थेरेपी और रिहेबिलिटेशन सर्विसेज की बात करते हैं तो हमारा कोई भी दिव्यांग भाई बहन अपनी एक OPD के नाते अपना इलाज के लिए NI को विज़िट करता है तो उसकी भी सारी जो ट्रीटमेंट की फ़ीस वगैरह है वो सब माफ़ कर दी जाएगी और उससे कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। ये हाल ही के निर्णय हैं। अब हम आते हैं योजनाओं पर। योजनाओं में जो कि काफ़ी योजनाएं ऐसी हैं जिनके बारे में सब लोग जानते ही हैं, तो मैं जैसे एक है एडिप, जिसमें हम असिस्टिव डिवाइसेस को दिव्यांगजन को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ना केवल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसकी फिटिंग करके अपने दिव्यांगजन भाई बहन को हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं जिससे वो उस असिस्टिव डिवाइस को आने वाले समय में सुचारू रूप से इस्तेमाल कर सके। स्कॉलरशिप स्कीम है जिसमें जो दिव्यांगजन होनहार छात्र हैं उनको हम डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन के लिए हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। यहाँ तक कि हम ओवरसीज़ एजुकेशन में भी हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। DDRS और DDRC की ट्विन स्कीम है जहाँ पे DDRS पूरी तरह से NGO सेंट्रिक स्कीम है, जहाँ पे हमारे NGOs जो हैं वो सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं और स्पेशल स्कूल चला रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ से ग्रस्त हमारे जो भाई बहन हैं उनके कल्याण के लिए। एवं DDRC में आमतौर पे कलेक्टर एवं अथवा आप कहें जिला प्रशासन की भागीदारी रहती है, साथ में एक NGO रहता है। एवं यहाँ पे मुख्य रूप से थेरेप्यूटिक सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, इस विषय में मेरे अति वरिष्ठ एवं अति सम्माननीय आदरणीय श्री लव वर्मा जी ने भी टिप्पणी करी थी और साथ में एक और विद्वान वक्ता हैं, उन्होंने भी अपना कंसर्न जाहिर किया। दोनों के वक्तव्यों के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मैं इतना बता दूं, इसमें एक सुझाव आया था कि कंपनी ऑफ सेक्रेटरीज वाला एक सुझाव आया था। तो भारत सरकार मतलब एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन ये असल में जब हमारा RPWD एक्ट बना 2016 उससे पहले ही इस कैंपेन को लॉन्च किया गया था। दिव्यांगता का क्षेत्र माननीय भारतवर्ष के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हृदय के बहुत निकट है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस दिव्यांगता के सेक्टर को बहुत ही महत्व देते हैं। तो इससे अपन मान लगा सकते हैं कि
एक्ट पार्लियामेंट में पास हुआ उससे पहले ही एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, सुगम्य भारत अभियान, ये लॉन्च कर दिया गया था। जहाँ तक कंपनी ऑफ सेक्रेटरीज़ का सवाल है, भारत सरकार के जितने भी मंत्रालय हैं उनमें जहाँ जहाँ सुगम्यता मैटर करती है ऐसे 20 मंत्रालयों को चिन्हित किया गया। एवं ऐसा नहीं है कि सुगम्य भारत अभियान COS कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज से अछूता रहा है। कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज के पटल पे इसको अनेकों बार रखा गया एवं उसका लाभ भी मिला। लाभ किस मायने में मिला कि वहीं से COS से बल प्राप्त करके आज की तारीख में मैं संक्षेप में उस बल का जो हमको लाभ मिला वो रिपोर्ट कार्ड में आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ। आप सभी को जानकर खुशी भी होगी। हमारे 13 मंत्रालय ऐसे हैं, मतलब 13 मंत्रालयों के लिए, जिनका मैं नाम भी पढ़ देता हूँ आपकी जानकारी के लिए एवं सामान्य ज्ञान के लिए। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मैटी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, रेलवेज, सिविल एविएशन, स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, हायर एजुकेशन, जस्टिस, लॉ एंड जस्टिस, कंज्यूमर अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। ये 13 मंत्रालय अथवा विभाग ऐसे हैं जिन्होंने हार्मोनाइज्ड गाइडलाइंस एक्सेसिबिलिटी को लेके अपनी डेवलप कर ली हैं। नोटिफाई होने की कगार पे हैं लेकिन डेवलप कर ली गई हैं। ठीक है, ऐसे गाइडलाइंस की संख्या 3 है क्योंकि जस्टिस, कंज्यूमर अफेयर्स और टेलीकम्युनिकेशन ने मोवा की गाइडलाइंस ही एज सच अडॉप्ट कर ली हैं। इसके अतिरिक्त देवी और सज्जनों, होम अफेयर्स, रूरल डेवलपमेंट, पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, इनके जो गाइडलाइंस हैं उनका ड्राफ्ट रेडी हो गए हैं और ड्राफ्ट कंसर्न विभाग में अप्रूवल के लिए पटल पे हैं। और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, DFS, ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन, इन दोनों मंत्रालयों की गाइडलाइंस तैयार हो गई हैं। पब्लिक कंसल्टेशन के लिए वेबसाइट पे हैं। एक निश्चित समय दिया गया है, पब्लिक कंसल्टेशन पूरा होने पर ये भी नोटिफाई हो जाएंगी। तो इसका अर्थ है कि कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज इस महत्वपूर्ण एक सरकारी टूल का इस्तेमाल किया भी गया और उसका लाभ भी मिला। सुगम्य भारत अभियान 31 मार्च 2024 को ये जो अभियान है ये संपूर्ण हो जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि 31 मार्च 2024 को सुगम्यता को पूरी तरह से हासिल कर लिया जाएगा। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि 31 मार्च 2024 के बाद सुगम्यता की चर्चा अर्थहीन हो जाएगी। ये दोनों ही अर्थ नहीं है। तो अर्थ क्या है? विभाग की एक अन्य स्कीम है बैरियर फ्री इन्वायरमेंट। तो एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन बैरियर फ्री इन्वायरमेंट में सब्ज्यूम हो जाएगी एवं कार्य चलता रहेगा। इसके अभी मेरे से पहले एक विद्वान वक्ता ने एक जिक्र किया था कि आज के देश में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़ोरों शोरों पर हैं। तो मेरे पास हालांकि कुछ आंकड़े मौजूद हैं कि सुगम्य भारत अभियान के तहत CPWD ने करीब 1100 केंद्रीय सरकारी भवनों को सुगम्य बनाया। फंडिंग करके स्टेट गवर्नमेंट के भी करीब 600 भवनों को सुगम्य बनाया। इस अभियान से प्रेरित होकर स्टेट गवर्नमेंट ने केंद्र सरकार से बिना पैसा मांगे करीब 250 के करीब अपने खुद के भवनों को खुद भी सुगम्य बनाया बिना फंडिंग के। किंतु ये आंकड़े मैंने आपको सुना भी दिए बातों बातों में, किंतु उसके साथ मैं ये भी हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जो संख्याएं हैं ये सुगम्यता की जो संभावनाओं के मुकाबले ये संख्याएं छोटी हैं। इसका अर्थ ये भी नहीं कि हम हतोत्साहित हो जाएं और स्वीकार करें कि काम नहीं हुआ। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम भविष्य के लिए महत्वाकांक्षी ना रहें। ये दोनों अर्थ इसके नहीं हैं। अर्थात ये है कि जहाँ तक सुगम्यता का सवाल है, इसमें सुगम्यता में 3 वर्टिकल्स पकड़े गए थे। एक था ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडिंग रेल, एयर ट्रैफिक एंड रोड ट्रांसपोर्ट। एक था बिल्ट अप एनवायरनमेंट, भौतिक निर्माण इत्यादि। और तीसरा था कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।
तो हाल ही में विभाग के नेतृत्व ने ये निर्णय लिया है कि ये जो काम है कि इतनी बिल्डिंग्स को हमने सुगम्य बना लिया, इतनी वेबसाइट्स को हमने सुगम्य बना लिया, ये काम ना केवल चलता रहेगा बल्कि इसके टारगेट्स भी बढ़ते रहेंगे, क्योंकि जैसे समाज का विकास होगा, नया नया निर्माण हो रहे हैं। आजकल जब हम नॉलेज सोसाइटी की बात करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी अक्सर ये कहा करते हैं कि आज का युग जो है नॉलेज का युग है, एवं जो जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास डेटा है, वही विजय प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार से अगर हम सिर्फ यही सोच के खुश होने की कोशिश करें कि इतने बिल्डिंग बना लेंगे, इतनी वेबसाइट हम ठीक कर देंगे, तो शायद हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, तो मेरे ख्याल से हमें जान लेना होगा कि हम ऐसा मैच खेल रहे हैं जिसमें जो गोल पोस्ट है वो लगातार शिफ्ट हो रहा है। तो इसलिए इस रियलिस्टिक चैलेंज को ध्यान में रखते हुए विभाग अब यह सोच रहा है कि हमारे जो आर्किटेक्ट्स हैं या फिर हमारे जो कोडर्स हैं, उनके कोर्सेज में, उनके सिलेबस में ये इनबिल्ट किया जाए कि एक्सेसिबिलिटी क्या है, उसके सिलेबस का अभिन्न अंग होगा, उनके जो प्रश्न पत्र आएंगे उसका अभिन्न अंग होगा सुगम्यता। तो उससे क्या होगा कि जो आए दिन जो भवन निर्माण जो हो रहे हैं उसमें हमको आए दिन सुगम्यता को लेकर रेट्रोफिटिंग की आवश्यकता नहीं होगी। जो भी भवन बनेगा, जो भी वेबसाइट लॉन्च होगी, उसमें इनबिल्ट फीचर्स होंगे, क्योंकि जो रेट्रोफिटिंग होती है वो अधिकांश केसेस में देखा गया है पूर्ण सुगम्यता का दर्जा नहीं दिलाती है किसी वेबसाइट को या किसी भवन को, जबकि जो इनबिल्ट जिस समय नींव रखी जा रही होती है उस समय जो सुगम्यता के फीचर्स तक रख दिए जाएं तो वो हमको उस भवन में या उस वेबसाइट में पूर्ण सुगम्यता का एहसास दिलाने में सक्षम होता है। अब मैं ज़रा ज़्यादा लंबा अटक गया उठाए हुए बिंदुओं पर। UDID कार्ड्स एक महत्वाकांक्षी योजना है विभाग की, जिसमें आज की तारीख में करीब 87 लाख UDID कार्ड्स बन चुके हैं, जारी हो चुके हैं। और मैं ये भी बता दूं कि हम लोग जैसे बोला करते हैं कि कोई भी काम, कोई भी कार्ड हो, हम जनता को कैसे प्रेरित करेंगे। हम जनता के या जो उसके जो यहाँ जनता से अर्थात मेरा अर्थ है कि जो हमारे दिव्यांगजन भाई बहन हैं, तो यह एहसास कराना कि आप ये सर्टिफिकेट बना लेंगे तो आपको लाभ होगा, मतलब बेनिफिट से लिंक करना। तो यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि हमने जो मैंने आप बताया था ना कि हम विभाग के हाल में लिए हुए छोटे छोटे प्रयास हैं कि फला चीज़ माफ़ हो जाएगी, फला चीज़ माफ़, कोर्सेज हैं, उपचार है इत्यादि। तो हमने ये कहा है कि जिसके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, या तो UDID कार्ड है अथवा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद में उसने UDID कार्ड के लिए अपना स्वावलंबन पोर्टल पे पंजीकरण भी करा लिया है। तो ऐसे तो इससे जो है एक प्रोत्साहन मिलेगा जो हमारे दिव्यांगजन भाई बहन हैं कि हाँ, हमें भी UDID कार्ड बनाना चाहिए, ये हमारे बेनिफिट से लिंक्ड है, हमें वहाँ बेनिफिट मिल रहा है। विभाग में दिव्यांगजनों के लिए स्किल डेवलपमेंट काम भी चलाया जाता है। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पहल विभाग कर रहा है अथवा करने जा रहा है। हम लोग हालांकि जितने भी विभाग में एक अलग से स्कीम चलती है स्किल डेवलपमेंट के लिए, जिसमें इस इम्पैनल्ड जो ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स हैं उनके माध्यम से ट्रेनिंग दी जाती है दिव्यांगजनों को। किंतु हमारा एक राष्ट्रीय संस्थान है जो कटक में लोकेटेड है, वहाँ पे एक विभाग की स्कीम विशेष जिसको सिप्डा बोलते हैं, उससे धन आवंटन करके वहाँ पे एक बड़े से भवन का निर्माण किया जा रहा है जो कि स्पेसिफिकली स्किल डेवलपमेंट के लिए ही ईयरमार्क्ड है। और आप सबको जानकर खुशी होगी, विभाग की ये सोच है एवं आप सभी के माध्यम से हम सोच का फैलाव भी करना चाहेंगे। हम अति शीघ्र एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्लोट करने वाले हैं, जिसमें हम ना केवल NGOs बल्कि कॉरपोरेट हाउसेस, जिस कॉरपोरेट हाउस की जिस स्किल में दक्षता है, महारत प्राप्त है प्रूवनली, उनको हम दावत देने जा रहे हैं अति शीघ्र। उस दावत के माध्यम से वो सरकार द्वारा वहाँ पे डेवलप किया हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करेंगे एवं दिव्यांगजनों को अपने रेस्पेक्टिव क्षेत्र में स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। उसके अतिरिक्त विभाग समय समय पर दिव्य कला शक्ति प्रोग्राम्स का आयोजन करता रहा है। दिव्य कला शक्ति एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है जिसमें दिव्यांगजन भाई बहन अपने कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। इस कार्यक्रम के लिए हम लोगों को प्रेरणा मिली थी भारत के निवर्तमान राष्ट्रपति माननीय
श्री रामनाथ कोविंद जी से। उन्होंने हमें प्रेरणा दी थी कि हम इस कार्यक्रम का आयोजन किया करें समय समय पे। देवकला मेलाओं का भी आयोजन होता है। विभाग की एक महत्वपूर्ण इकाई है एलिम्को, जो कि आर्टिफिशियल लिम्स का निर्माण करती है। हाल ही में विभाग ने ये निर्णय लिया है कि इस इकाई का आधुनिक अथवा कहेंगे स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इसका मॉडर्नाइजेशन किया जाए, जिससे भी जो भी इक्विपमेंट्स आ रहे हैं वो वर्ल्ड में बेस्ट के साथ कंपेरेबल हों। विभाग की एक और इकाई है NHFDC, जो कि दिव्यांगजनों को उनका कुछ रोजगार या व्यवसाय शुरू करने के लिए लोन्स प्रोवाइड करती है। मुख्य रूप से यही कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। और मैं चाहता हूं कि ये बल्कि सच भी है, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नई चीज़ चाह रहा हूं। सच तो यही है कि गवर्नमेंट एक लेजिस्लेशन के माध्यम से, सरकार एक विधेयक लाती है, एक एक्ट बनता है, तो उसके माध्यम से गवर्नमेंट एक कैटलिस्ट का काम करती है। किंतु समाज के जन जन में जब ये सोच व्याप्त हो जाएगी कि दिव्यांगता किसी प्रकार की अक्षमता का या किसी भी प्रकार की डिप्राइवेशन का आधार नहीं हो सकती है, तो वो सोच ही दरअसल हम सबको आगे ले जाएगी। क्योंकि हमारे किसी भी पॉपुलेशन में WHO भी बोलता है कि किसी भी पॉपुलेशन में लगभग 5% तक दिव्यांगजन हो सकते हैं। हालांकि ये गैस्टिमेट है, प्रिसाइज हमको संख्या तभी मिलती है जब मेडिकल असेसमेंट हो जाता है, हम उसी पर रिलाई करते हैं सर्टिफिकेट्स इशू करने में। लेकिन हमारी जनसंख्या का जो भी हिस्सा है, 3% हो, 5% हो, उसमें कूट के मानव संसाधन छिपे हुए हैं, भरे हुए हैं। तो वो संसाधनों का इस्तेमाल जब तक नहीं होगा तब तक देश अपने क्षमता का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। और हमारा मतलब देश की वो जनसंख्या जो अपने आप को डिसेबल्ड नहीं समझती है, उनका भी कल्याण पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। इसलिए इस कार्यक्रम की संचालिका ने शुरू में बात कही थी, दे और अस वाली बात है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि दिव्यांगजनों के कल्याण करने के लिए हम अगर सोच रहे हैं तो इसमें कोई चैरिटी नहीं कर रहे हैं। हमारा अपना कल्याण तभी संभव है जब हमारा समाज का हर एक क्षेत्र, इंक्लूडिंग दिव्यांगजन भाई बहन, उनका भी कल्याण हो। तो हम अपने कल्याण के लिए सोच रहे हैं, अपने देश के कल्याण के लिए सोच रहे हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग दिव्यांगजनों के लिए ऐसे ही काम करते रहेंगे एवं सार्थक जो संगठन है ये अपने नाम के अनुरूप अपने प्रयासों को ऐसे ही सार्थक करता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू राजीव जी। आपने अपने विभाग के जो बहुत सारे इनिशिएटिव हैं एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो हमारे साथ शेयर किए। किस तरह से 13 मिनिस्ट्रीज गाइडलाइन इशू करने के लिए तैयार हैं। सुगम्य भारत जो 2024 तक उसका टारगेट है, उसमें एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन के थ्रू जो भी सारी चीज़ें हैं, 87 लाख UDID कार्ड्स हैं, एलिम्को वगैरह और बहुत सारी चीज़ें आपने बताई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी मैं गेस्ट ऑफ ऑनर से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे कुछ दिव्यांग हैं, उनके जो उनको ऑफ़र लेटर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो आपके कर कमलों से हम चाहेंगे कि उनको ऑफ़र लेटर दिए जाएं। थैंक यू सुरेश सर। 10 बच्चे हैं हमारे जिनको सार्थक ने जॉब में फैसिलिटेट किया है। पहला बच्चा है सोनू, ही गॉट सेलेक्टेड इन रेमंड। टीम प्लीज ब्रिंग द कैंडिडेट्स हियर ऑन द डायस। ऑफर लेटर्स। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यस सर, एक थोड़ा सा
रिक्वेस्ट राजीव सर एंड राजकुमार सर कि सोनू को प्लीज़ ऑफर लेटर दें. He got selected in Raymond. नेक्स्ट इज कौशलेंद्र. इनका ब्लिंकिट में सिलेक्शन हुआ है. कौशलेंद्र. थर्ड इज मनीष. इनका जेके ग्रुप में सिलेक्शन हुआ है. फोर्थ इज दीपक सोनी. इनका फ्लिपकार्ट में जॉब लगा है. जुनेद अंसारी. इनका भी ब्लिंकिट में ही सिलेक्शन हुआ है. विकास गौतम. He got selected in Park Plaza Hotel. खुश मोहम्मद. फ्लिपकार्ट में सेलेक्ट हुए हैं ये. प्रशांत. यूरेका आउटसोर्सिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड. धीरज गौतम. He got selected in D-Mart. Dheeraj Gautam is selected in D-Mart. And last is Sonia. She is selected in Sarthak Educational Trust itself as a trainer. Request our guests to please take their seats. Thank you Rajiv sir, Rajkumar sir, Love Verma sir, Raj Kapoor sir, Dr. Agarwal sir and Suresh sir. Now I'd request Raj Kapoor sir to please share his experiences and words with our audience. Good afternoon. मैंने इतने महारथी और इतने महानुभाव पहले बोल के जा चुके हैं कि मेरे लिए कहने के लिए कुछ है नहीं. लेकिन जब मैं ये सब्जेक्ट देखता हूँ एडवोकेटिंग चेंज, तो मेरे 40 साल का कॉरपोरेट एक्सपीरियंस में मैंने ड्यूरिंग दैट टाइम मैंने 3 या 4 कंपनीज़ को, सिक कंपनीज़ को टर्न अराउंड किया था. और सबसे बड़ा की ड्राइवर होता है चेंज. और ये चेंज पहले जैसे सबने बोला इट हैज़ टू कम फ्रॉम योर इनसाइड. इसी तरह ही जैसे माइंडसेट चेंज, चेंज इन द अप्रोच ऑफ द फैमिली, चेंज इन द अप्रोच ऑफ द सोसाइटी, चेंज इन द वर्क एनवायरनमेंट, ये सब अगर प्रोग्रेस होनी है तो हमको अपने आप को कंटिन्यूसली री इन्वेंट करना पड़ेगा. और री इन्वेंशन के लिए हमको चेंज लानी ही पड़ेगी. वी हैव टू चेंज अवर सेल्व्स टू मेक इट सूटेबल फॉर टुडे, tomorrow and day after. क्योंकि जो कहते हैं what has brought us here will not take you there. जो हम करते करते यहाँ पहुँचे हैं वो वहाँ तक नहीं लेके जाएगा. उसके लिए हमको परिवर्तन लाना ही पड़ेगा. और मेरा आज बहुत बड़ा सौभाग्य था कि मैं इतने बड़े बड़े चेंज लीडर्स के साथ बैठने का मुझे अवसर मिला जो एक्चुअली सोसाइटी में चेंज ला रहे हैं. जैसे मक्कड़ साहब ने बताया, मनोज सर ने बताया, शर्मा जी ने, राजकुमार जी ने जो बताया, एकदम दे आर दी ड्राइवर्स ऑफ चेंज. हम लोग तो बैठ के कह सकते हैं एडवोकेटिंग चेंज, बट दे आर द पीपल हु इम्प्लीमेंट द चेंज. एंड चेंज के बिना कुछ भी लाइफ में हो नहीं सकता. अब मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं है तो मैं आपको अपने 2-4 अच्छे इंटरेस्टिंग केसेस बताता जहाँ पे मैंने सिक कंपनीज़ को टर्न अराउंड किया. पर उसकी की पॉइंट यही था कि वही रिसोर्सेज, वही कंपनी लॉस मेकिंग थी, वही रिसोर्सेज में वही कंपनी को
उनके रिसोर्सेज को रीशफल करके, रीजगल करके, रीएक्टिवेट करके, रीजनरेट करके उनको कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाया। इसी तरह ही हम सोसाइटी में भी जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उन्हीं की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने से, उनकी सक्षमता को ध्यान में रखते हुए कैसे उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन करके उनके भी जीवन को सार्थक करें और अपनी सोसाइटी को भी सार्थक करें। मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि ऑलरेडी बहुत लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन हैज़ बीन शेयर्ड टुडे एंड हमको बहुत टाइम लगेगा उसको समझने में और उसको एहसास करने में कि कितनी बड़ी परिवर्तन दुनिया में ला रही है। और सार्थक भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सब लोगों की लाइफ को चेंज करने के लिए इतनी हर वक्त कोशिश कर रहा है। और आई कॉन्ग्रेचुलेट डॉक्टर अग्रवाल फॉर बीइंग द ड्राइवर ऑफ दिस चेंज। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड आफ्टरनून। थैंक यू। With this, we come to the end of this session. I thank all our guests for sparing their valuable time and sharing their experiences and their action plans. It's really creditable that Haryana government has taken lead in implementing so many initiatives which are implemented at the ground level. And Rajiv Sharma ji for enlightening us with all the activities that the Department of PWD is doing, and Manoj ji for sharing with us the challenges and the opportunities that exist in the infrastructure sector and the accessibility that needs to be inbuilt at the design stage itself so that retrofitting is avoided, which is a very costly affair and unworkable. So with this, we come to the end of this session. I thank each and every one of you and the audience and everyone for sparing their valuable time. And with this, I think we will just present the mementos to our guests. I request our National Advisory Board member Sandeep Bhargava sir to please join us on the dais and extend our expression of gratitude and thanks to our esteemed panelists and guests. Yes sir, please everyone please come to the front so as we can have a group photograph. Thank you Rajiv ji, Rajkumar ji, Manoj ji, Love Verma sir, Dr. Jitendra Agarwal, Suresh Gupta sir, Raj Kapoor sir and Sandeep Bhargava sir. Thank you everyone for joining the session. Thank you so much. Yes, please come to the fore for a group photograph. मोमेंटोस बॉक्स में रख दो, वो उधर में जो रखे हैं. Thank you so much, sir.